it was like only 40 days in the company, and she told me, "You are not supposed to work in a company like this, and your IQ level is very low." Came to like Nulearn. So I met you. So you have been an inspiration for me, starting from zero, now running this business for so long. I observed you. I learned from you. Right. Then I went to start my own company. Happiness doesn't mean that you need to take breaks, lot of off. Happiness just means that you need to enjoy your work. तो मैं मोती नगर में घूमता था. आई रिमेम्बर मैंने 30 के आसपास शॉप्स उस पर लिस्ट करा दी थी, एंड Amazon यूज टू गिव अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज पर वो. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि पर शॉप लिस्ट करने पे, और मतलब गर्मी होती थी, सर्दी होती. सो दैट्स व्हाट. Right. सो being an employer, I feel very proud, but it's very challenging also. And again, at the same time, like I enjoy my processes also. Hello, Jatin. Welcome to Saturday with Sumit. Hello, sir. How are you? All well. How I hope you're doing well. Yes, very good, sir. Thank you so much for taking our time. I know that you have some other assignments. You took some time for us for this special event. Thank you so much for giving us the opportunity to meet and have a conversation with you today. Thank you so much for the opportunity, sir, to be present on your YouTube channel. It's my honor. Yes. So, Jatin, the audience doesn't know, but you had worked with Newland for close to 9 odd months. Hmm. Previously, also you had worked with an edtech company, and so your journey as an employee, and then now you are running your own firm by the name of Scout Biz International. So, I am very curious to know, and even audience would also like to know, how was your journey from being an employee to becoming an employer? And started employing, giving employment to people, so I'm sure that's a proud feeling for you. Definitely, sir. Like when I entered into my college, I always had a dream to start a business. So when I started as an employee, it was not sure. It was I was not very sure when to start a business, but it was my dream to like run a business. So when I started with a firm called Sparta Telecom. It's a subsidiary of that British Telecom. So it was a hardcore sales job. I chose sales job because I wanted to do a business. So and then I was not very successful there. I used to do like 550, 600 calls per day. So it was very hard. Then it took me approximately 60 days to convert my first sale there. And then slowly and gradually I started excelling. But as that was a US and UK process, so things were not working. Then I went to an edtech firm. Again, it was very hard for me to cope up there. So, when I started my journey in a edtech firm, I remember the manager told me in front of 70 people that it was like only 40 days in the company, and she told me, "You are not supposed to work in a company like this, and your IQ level is very low." So she asked me about like how much percentage you got in 10th. So I said it's 74. How much percentage you got in 12th? I said 67, 68. How it is possible? You look like retarded. So because I used to see people sitting around me, I used to feel that I am very smart in front of them, but still I am not able to convert those sales. So if you ask me as an employee, like when I was struggling, what I did thorough R&D, like what an employee should work upon. So first thing, you should take care of your happiness. Happiness doesn't mean that you need to take breaks, lot of offs. Happiness just means that you need to enjoy your work. And for enjoying your work, the first and foremost thing you need to do is that you need to work in a company is that like it is your own company. वैसा नहीं है कि like it's my own company, it's my work, so it's my own business. So why I started working with a thought this is my own business, because I wanted to start a business. So that was my first motive, that I will work as this is my own company. Then I started gradually getting some good results and everything. Slowly and gradually, I was picking up pace. I got double promotion in that company, and it was going good. I got the best performance award a lot of times. Then I came to like Nulearn. So I met you. So you have been an inspiration for me, starting from zero, now running this business for so long. I
I observed you, I learned from you, right? Then I went to start my own company. So to talk to me about the employer's thought. So for an employer's thought, I feel is this is like hiring a team. It's one of the like hiring is a challenge. Like you need to find right people for the right position is the most toughest task in any organization. Building a team basically. So that's what. Right. So being an employer, I feel very proud, but it's very challenging also. And again, at the same time, like I enjoy my processes also. एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है कि आप किसी भी प्रोफ़ाइल से आते हैं एज़ एन एम्प्लॉयी फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड वर्क्ड इन एचआर सो मेरा तो सेल्स मार्केटिंग से दूर-दूर तक नाता नहीं था। Hmm. But you had worked in sales, very closely worked with the customers, the external customers. So I Hmm. was managing the internal customers and you manage the external customers. Hmm. जब फाइनेंस की बात आती है, बिजनेस होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, 10 लोगों को हायर करना है, Hmm. कैसे उनका पीएनएल मैनेज करना है, ये कैसे सीखा? हाँ सर, लाइक इट्स अ जर्नी बेसिकली, एक प्रोसेस है। मतलब ये अगर हमें कोई सिखाता है तो भी हम सीख नहीं सकते हैं। तो बट आई लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं वापस कॉलेज में जाता हूँ, मेरे दो स्टार्टअप्स थे। पहला स्टार्टअप मैंने किया जब आई रन इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, उससे मैंने एक ही सेल किया था एंड उससे मेरे को जो पैसा आया था दैट वाज 1482 रुपीज। वो मैंने उस 9 महीने में उससे सिर्फ उतना ही कमाया था। Then I did another startup that was a travel startup. Then I did another startup with Amazon. उसमें शॉप्स को लिस्ट कराना होता था। मेरे को ये था कि मेरे को ज्यादा टाइम जॉब नहीं करनी है उस टाइम पे। सो मैंने Amazon के साथ एक स्टार्टअप किया। उसमें क्या होता था, वेंडर्स को लिस्ट करना होता था Amazon पे। तब Amazon का नया नया आया था ये क्या बोलते हैं, सेल्स वाला, कि चलो, आप अपना राइट। प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, मल्टी वेंडर बेसिकली। तो मैं मोती नगर में घूमता था। आई रिमेम्बर मैंने 30 के आसपास शॉप्स उस पर लिस्ट करा दी थी एंड Amazon यूज टू गिव अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज पर वो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि पर शॉप लिस्ट करने में, और मतलब गर्मी होती थी सर्दी होती थी, मेरे को पैसा बड़ा पसंद था, तो वो करते थे। देन इट वाज अ टॉक अबाउट लाइक 2016 की बात है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद Amazon। ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी जा रहा था बिजनेस उस टाइम पे। मैं आई वाज अ स्टूडेंट, तो फंडिंग नहीं होती थी। देन आई वाज नॉट अवेयर कि हायरिंग कैसे करना है, कैसे करना है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे अम्यूजिंग मोमेंट है, जो मैं बताता हूँ आपको। 2016 सितंबर की बात है। सो आई वांटेड टू हायर समवन, so I called few people. So there was one guy ready to in meeting at least. So in Kirti Nagar Mall, Moments Mall. So Moments Mall mein I was in trouser and shorts only, that t-shirt and normal trousers, casual wear. And that guy, he was an MBA, he came in a full suited, and I ran away from there. He called me and I did not answer his call. मतलब आज तक मतलब मेरे को बहुत amusing scene लगता है. Then I started this company after doing so many jobs, like 2 3 jobs. So again I had a question कि मैं कैसे कर पाऊंगा. बट देन आई हायर्ड माय फर्स्ट एम्प्लॉय। वो मेरे घर पे मेरा ऑफिस था, सो इंटर्नशिप दिया उसको 5000 का। उसको इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी, कंप्यूटर चलाना भी। उसको हायर करने का सबसे बड़ा पर्पज ये था कि मैं उसे हैंडल कर पाऊँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे को ये भी फील आती थी कि मतलब अगर बहुत एजुकेटेड बंदा मैंने ले लिया है, मेरे से लेकर, तो उसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे देन रेस कर। करेक्ट सर। तो उसके बाद आई केम टू दिस ऑफिस। फिर थोड़े से और स्मार्ट पीपल पे आया, थोड़े से और स्मार्ट, अब एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। बहुत गलतियां भी होती हैं समटाइम्स। मैं टीम से बहुत फ्रेंडली भी रहा हूँ, तो फिर मेरे को ऐसा भी फील होता है कि यार बहुत रिस्पेक्टफुल भी नहीं रहते हैं लोग। फिर देन आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ बैलेंस। फिर मैं पहले सबके साथ बाहर बैठता था, देन आई एम इन अ कैबिन। सो ये बताने का पर्पज है लाइक इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग जर्नी। मतलब ये धीरे धीरे हम सीख सकते हैं। तो मैंने एक प्रोसेस ये फॉलो किया कि पहले मैंने अपने से काफी अनएजुकेटेड लोगों को, या फिर अनएजुकेटेड नहीं बोलूंगा, जो कम मेरे से स्मार्ट होते थे, उनको मैंने हायर किया ताकि मेरे को कॉन्फिडेंट फील हो। फिर उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर उठा, उससे थोड़ा ऊपर उठा। अब ऐसा है कि देर आर फ्यू पीपल इन माई टीम जो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग मेरे को बहुत बाद में मिली कि एज एन एम्प्लॉयर यू नीड टू हायर मोर स्मार्ट पीपल देन यू, ताकि वो और स्मार्ट टीम बना पाए। तो अब वो मेरे को काफी हद तक अकल आ चुकी है। तो फ्रॉम अब थोड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। दिस इज व्हाट बट द जर्नी प्रेशर इज। भी होता है, एक सैलरी आती है महीने के एंड में और एक प्रेशर होता है कि मुझे इतना पैसा, सैलरीज, मेरे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, रेंटल्स और ये सब मुझे निकालना है। एक प्रेशर फील होता है जो एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय हमें कम होता था। बहुत होता है सर। हाँ मतलब मैं अभी जैसे आज फर्स्ट है, तो इस महीने के फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में सैलरी जाती है अराउंड 7 to 10। तो अभी भी मतलब जब भी मैं 1 तारीख को गाड़ी चला के ऑफिस आता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ यार, जब जॉब कर रहा होता तो 1 तारीख को कोई टेंशन नहीं होती थी, बड़ा स्ट्रीमलाइंड एक लीनियर काम होता था। 1 तारीख को सैलरी बैंक अकाउंट में आ गई, करना ही क्या होता था, अपना मतलब जॉब किया, उसको अच्छे से परफॉर्म किया, उसका पैसा मिल गया। बहुत ज्यादा फील होता है कभी कभी। बट एट द सेम टाइम ये एडवेंचर है एक। इसमें मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो दैट थ्राइव्स के नहीं यार अभी करते हैं। इसमें मतलब मल्टीप्लाई हो सकती हैं चीजें। बट हाँ, इस चीज का एक वो तो रहता है प्रेशर के, अभी रेंट भी निकालना है, सैलरी भी निकालनी है। एंड देन देर आर पीपल, मतलब जो होता है उनको फर्क नहीं पड़ता है ना।
टीम में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो मतलब दैट्स व्हाट। बट हाँ, प्रेशर बहुत फील होता है कि मतलब निकालना है अभी सैलरी कभी वगैरह। ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको रिग्रेट हुआ हो कि वो 9 to 6 वाली जॉब ही ठीक थी, इतना प्रेशर फैमिली से कभी लगा हो कि क्यों नौकरी ही ठीक थी, बिजनेस में कैसे मैनेज करोगे, इतने चैलेंजेस हैं। सो कभी ऐसा हुआ, ऐसे मोमेंट आया कि कभी रिग्रेट हुआ हो अपने डिसीजन पे? बहुत बार सर, बहुत बार। मतलब मैं मतलब रिग्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक डाउट आता है। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ डाउट मैं बोलूंगा इस चीज को। क्या जतिन, बहुत अच्छा ठीक ठाक पैकेज था, वाई यार, मतलब कब जब जब प्रेशर बढ़ता है, जब टीम में से मान लो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं या छोड़ जाते हैं लोग, और क्लाइंट्स को सर्विस देनी होती है, मतलब उनको भी सेटिस्फाई करना, देन देयर आर नो पीपल सपोर्टिंग, प्लस कभी कभी फंडिंग भी नहीं होती है। आई स्टिल रिमेम्बर वन डे हम दोनों को, मतलब जो मेरा पार्टनर है, वी हैड टू गिव अ सैलरी ऑफ 1 लाख, मतलब 7th ऑफ किसी मंथ में। अब वो मंथ में जस्ट मतलब वो नहीं बताऊंगा, बट पर 6th को हमारे हम दोनों के अकाउंट में मिला के 450 रुपीज पड़े थे। तो वो प्रेशर मतलब मेरे को आज भी फील होता है जब मैं घर जा रहा था ऑफिस से। अब यार कहाँ पंगे में पड़ा हुआ है, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, नहीं नहीं करता तो भी कितना स्मूथ होता। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, द रिस्पेक्ट यू गेट, तो फिर वो डिसॉल्व हो जाता है सब कुछ। बट हाँ, सेल्फ डाउट आता रहता है टाइम टाइम पे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता 3 साल, आपको 3 साल हो गए स्काउट बिज को, आई थिंक है। यस ये सर, कंप्लीट। करेक्ट। अब तो वो डाउट्स आने बंद हो गए होंगे। हाँ, अब कंपैरेटिवली वी आर वेरी क्लियर, अब माइंडसेट बहुत क्लियर है हम कहाँ जा रहे हैं, और विजन भी बहुत क्लियर है हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब पहले क्या होता था, बस चले जा रहे थे चले जा रहे थे। अब हर 3 महीने का एक माइलस्टोन डिफाइंड है, तो उस पर हम फोकस करते हैं। तो नाउ वी आर मतलब अभी आज तक वी हैव नेवर बीन इनटू लॉसेस आल्सो, बट अभी हम ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं पहले से। तो 3 साल एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। How do you ensure in the organization that your employees are engaged? मतलब they are connected to the vision of Jatin, vision of your partner, vision of the organization. कैसे अलाइन होता है ये? बहुत जितना कहने में आसान है उतना आई एम श्योर एग्जीक्यूशन उतना ही मुश्किल है कि आपके हिसाब से कोई आपके कहने पे और आपके आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करे। करेक्ट सर, मतलब ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है किसी भी एंटरप्रेन्योर से आप पूछोगे तो। अब इसका आंसर तो सर देखो, मतलब मान लो जितनी भी मेरी टीम है, व्हाट आई मतलब इसका प्रैक्टिकल आंसर मैं बोलूँ ना, तो overall everybody in my company cannot be aligned with my company vision. So what I do is I am a guy who is able to connect with people. मैं थोड़ा कनेक्ट जल्दी कर लेता हूँ लोगों से, एंड पीपल टेंड टू ट्रस्ट मी इजीली, ऐसा मेरे को फील होता है। दैट्स माय पर्सनालिटी। अब उसको ये है कि मैं थोड़ा जॉली रहता हूँ लोगों से, तो पीपल फील इजी टू अप्रोच मी। फर्स्ट थिंग, अगर उनको कोई भी इशू आता है, पीपल कम टू मी इजीली। सेकेंडली, आई चूज फ्यू पीपल इन माई टीम, जैसे 3-4 लोग हैं कि उनसे मैं अपनी कितनी विजन शेयरिंग कर सकता हूँ। आई डोंट शेयर माई विजन विद एवरीवन, क्योंकि वो सबको मैं शेयर करता हूँ तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट ये है कि देर आर फ्यू पीपल हु आर बाउंड टू मी, के मतलब सर हैं या जतिन है, इन्होंने हायर किया, दे अंडरस्टैंड कि कंपनी हायर करके पैसा दे रही है तो इनको फॉलो करना है। सो इफ देर आर पीपल हु आर रेडी टू गेट मैरिड टू कंपनी स्ट्रेटेजी, तो मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ और मतलब उनसे अपनी चीजें शेयर करता हूँ। सो इफ दे आर कनेक्टेड टू मी, इवेंचुअली दे हेल्प मी कनेक्ट टू अदर पीपल ऑल्सो। राइट, राइट, हाँ। राइट। ये तो बात होगी आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी की और पास्ट एक्सपीरियंस की। अब आपने एक कोर्स भी किया है न्यूलन से विच इज सर, इनटू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। करेक्ट सर। ये कैसे और क्यों आपको लगा कि एट दिस स्टेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? ठीक है। सो देर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस कोर्स, अगर मैं बताऊं तो, लाइक व्हेन आई वाज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू न्यूलन, आई सोल्ड दिस कोर्स. And when there was second third batch happening, so what happened was like I've got feedbacks from the people who were the senior managers of the company, directors of the company. तो वो बताते थे कि यार कितना मस्त कोर्स है, इतना जबरदस्त कोर्स है, हमने ये सीखा वो सीखा। जब मैं न्यू था तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट, मेरे को उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ नहीं आते थे। बट जब मैं न्यूलन में भी जॉब कर रहा था, आई वाज सेलिंग दिस कोर्स, थोड़ा थोड़ा मैं मैनेजरियल रोल्स में आ रहा था, आई वाज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसेस मोर, तो मेरे को लगने लगा था कि यार ये कोर्स है जो मुझे स्ट्रैटेजी में करने की जरूरत है। देन मैं पाथ मैंने एक बुक में पढ़ा था, इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। सो ग्रोथ माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर ग्रोथ माइंडसेट देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, इज दैट यू कीप मीटिंग न्यू पीपल हु आर बेटर देन यू। सो स्ट्रैटेजिक कोर्स आई वाज सेलेक्टिंग क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट नीश के लोग आएंगे, मतलब अलग अलग लोग आएंगे। इट्स नॉट नीश स्पेसिफिक, जनरलाइज थोड़ा सा कोर्स है। एंटरप्रेन्योर्स के आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तो बड़े सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ही आएंगे।
सो इन ऑर्डर टू ग्रो योर माइंडसेट, अगर आपको माइंड के हॉरिजॉन्स बढ़ाने हैं तो आपको अलग अलग लोगों से मिलना बहुत जरूरी है. तो दैट्स वाई जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल. मतलब दे हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड द लव आई गॉट फ्रॉम दिस बैच ना, मतलब आई हैव नॉट गॉट फ्रॉम एनी अदर. मतलब मेरा कोई भी क्लास से नहीं मिला मेरे को. एंड मैं प्रोफेसर को भी बोलता था ये बात, एंड आई टोल्ड दिस टू एवरीवन, दिस इज द ओनली क्लास इन माय होल लाइफ जिसको मैंने 100% अटेंडेंस के साथ किया है. मतलब आज तक कभी भी मेरा अटेंडेंस 40%, 30%, 20% ऐसे रहता था, एंड द एंगेजमेंट इन दिस कोर्स वाज सो गुड. सो इन ऑर्डर टू मीट न्यू पीपल, थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, प्लस अंडरस्टैंडिंग के बड़े लेवल पे काम कैसे होता है, सो आई वांटेड टू दिस कोर्स. प्लस इसका हिस्ट्री थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, इट्स अ सक्सेसफुल कोर्स ऑलरेडी, तो इसलिए भी मैंने किया. Right, right. Now you are a proud alumnus and an ex-employee of Nulearn. करेक्ट सर. Now, coming to another question about Scout Biz. So, what exactly you guys do? It's been 3 years that you have been running your business. So, what is this organization into, and why only this particular line of business? So what was going in your mind when you started off? Okay. So Scout Biz International is basically a website development and digital marketing company. So we cater clients from different countries. So right now we are having businesses in 4 countries, and we have served approximately 513 clients till today. So more of our business comes from social media and digital marketing, where we run Google ads, Facebook ads for the people, and we are into that's web development also. So we develop websites on different technologies. So that's how we Right. earn money also, like 60% from social media and paid ads marketing, and 40% from website development. And if you talk about like how why this business, how we started, digital industry, like post COVID, uh, being into sales is a quite generalized profession sir. तो होता क्या है कि जब आप सेल्स में होते हो तो आपको लगता है आप सिर्फ सेल्स में अच्छे हो, बाकी एक जो ऑपरेशनल क्या बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो मिसिंग होता है. तो बट Right. सेल्स इज अ बिग पैरामीटर. अगर आप सेल्स में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हो तो यू कैन सक्सीड इन डिफरेंट फील्ड्स. आप डॉक्टर पे नहीं हो, इंजीनियर पे नहीं हो, सीए नहीं हो, मतलब यू आर नॉट स्पेसिफिक, बट आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है. बट एट द सेम टाइम समथिंग स्पेशलाइजेशन इज मिसिंग. सो वहां पर चूज किया Right. कि डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग, मतलब अच्छा स्कोप में चल रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो एक आइडिया ये था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, मार्केटिंग भी आ जाएगा, है ना. तो दोनों को अगर कंबाइन करके एक अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन हम बना के आगे काम कर सकते हैं तो Right. अच्छा रहेगा. सो दैट वाज द थॉट. Okay. Nice. And I am following your LinkedIn profile for quite some time, and I see that last couple of years you have been very aggressively posting leadership quotes and other stuff also on LinkedIn. And I also have seen that other than your Scout Biz stint, you also been a part of Toastmasters Club as a Yes, sir. president. Yes, sir. So why this? What was the reason that you got into something like this? The only reasons are like when it comes to public speaking, I used to do it in my college times. So public speaking has never been a very big fear for me after my college. पहले होता था. But when it comes to Toastmasters Club, I joined Toastmasters Club in August 2022, I remember. So I went to Toastmasters Club for only one reason. So when you are into business, so as you are also an entrepreneur, I am an also entrepreneur. So you will understand कि बहुत अकेलापन भी फील होता है कभी कभी. So I used to see my friends, कॉलेज के फ्रेंड्स जो दूर रहते थे वो सारे घूमने जा रहे हैं. देन माय ऑफिस के जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं वो भी घूमने फिरने जा रहे हैं. वो मेरे को ऐसा, और व्हेन आई एम टू बिजनेस सो इट इज वेरी हार्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. बहुत मुश्किल होता था. देन आई थॉट कि यार मतलब एक नेटवर्किंग क्लब ज्वाइन करते हैं. तो मैं बीएनआई भी गया. बीएनआई इज टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस, तो वो मेरे को सेटअप सही नहीं लगा. देन आई फाउंड थ्रू गूगल, तो मेरा एक फ्रेंड भी है वो भी यहाँ करता था टोस्टमास्टर, तो गूगल से मैं सर्च करके गया टोस्टमास्टर क्लब ऑफ न्यू दिल्ली, जस्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स के दोस्ती यारी मेरी अच्छी रहेगी, थोड़ा मैं खुश रहूंगा, जस्ट टू बी हैप्पी कि बिजनेस के अलावा कुछ होना भी जरूरी है. देन आई वेंट देयर, Right. आई सॉ पीपल स्पीकिंग सो वेल. तो मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा बोलना सीखा. देन आई अंडरस्टूड के टोस्ट मास्टर्स इज नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग, टोस्ट मास्टर्स अबाउट लीडरशिप ऑल्सो. वहां पर आप Right. अपना उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी में जा सकते हो. देन आई बिकेम ट्रेजरर, फिर मैंने सार्जेंट आर्म्स किया. देन आई वाज वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन. वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन इज समवन जो पूरे क्लब को मेंटोर करता है. नाउ देन प्रेसिडेंट इज लाइक अ सीईओ ऑफ द क्लब, तो जो पूरे क्लब को चलाता है. तो ऐसा होता है कि फ्री में यू आर गेटिंग लीडरशिप स्किल्स, जो प्रैक्टिकल Right. लीडरशिप स्किल्स है, पीपल स्किल्स. So that's why I do Toastmasters regularly. So it's a life-changing opportunity for me. One personal question about your Ladakh trip. You and your brother went to Ladakh on a bike. Yes, sir. How was that experience? And
if you have to see from a perspective of taking risk or talking about leadership, do you relate your trip to any of the leadership angle, or you feel that that really motivated you well while you're doing business? 100%, sir. Like For Ladakh me, trip. it is very difficult to I'm sorry. drive Hmm. from here to Ladakh. It is not easy. Hmm. I've seen people coming back after a few days. They're not able to survive. Hmm. So and it was a good survival there, and obviously you came back shining. So how was the experience, and just share some thoughts. Okay. Sir, as I said, like I read in a book, मैं growth principle follow करने का try करता हूँ. So that growth principle says कि आपको तीन चीजों पे focus करने की जरूरत है. Number one, that you meet new people regularly in order to expand your horizon. Secondly, uh, you should take more risk. अगर आप risk लेते हो, तो वो risk लेके अगर आप fail भी हो जाता है, तो again you are back to that square only. तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है. Third, you should not be entitled to anything. You should be grateful about your luck also. कि if अगर मैं यहाँ पैदा हुआ, अपनी इस फैमिली में पैदा हुआ, that's why I'm here. नहीं तो मैं कहीं भी पैदा होता तो मैं शायद नहीं होता यहाँ तक. So Right. these are the three principles I'm following throughout my life. So when it comes to Ladakh trip, वो मतलब मैंने बाइक लिया था बुलेट, वो मेरा पहली अपनी कमाई से मैंने कुछ लिया था. तो दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट. तो मेरे को वो बाइक से लद्दाख तो जाना था. सो वन डे मी एंड माय ब्रदर वाज सिटिंग, तो यार कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना है. भी थॉट के चल तू भी 2 महीने के ब्रेक पे, अब मैं भी बिजनेस करने लगा हूँ, मेरा पार्टनर भी है, तो इस चीज का क्यों ना फायदा उठाया जाए. सो हमने कहा चल लद्दाख ट्रिप प्लान करते हैं. अब घर फैमिली वाज नॉट रेडी ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम इट्स यू लिव ओनली वंस. तो उसको फॉलो करके when it comes to leadership, you need to respect your own decisions also, respect your own happiness, on your own feelings also. तो उसको देखते हुए डिसाइडेड कि यार सब मान जाएंगे एक बारी, लेकिन ये करके आना है, नहीं तो फिर हैप्पीनेस नहीं होगी. तो वो रिस्क लेने का डिसाइड कर लेता है कि जाना ही है. व्हेन इट कम्स टू बीइंग स्ट्रांग, तो लद्दाख ट्रिप इज ऑल अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स. वहां पर बाइक खराब हो जाना, 4 घंटे तक रोड पे खड़े रहे थे हम. देयर वर लैंडस्लाइड्स ऑल्सो, तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा आज. हम एक दिन खो भी गए थे, तो वी स्लेप्ट इन जंगल. तो बट उसके बाद भी करते रहना. सो ऑन्टरप्रनोरशिप आपको ना ये सब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर देता है बेसिकली, कि यार इतने सारे रिस्क हैं, इतनी सारी टेंशन है, उसके बावजूद इस इन चीजों के अलावा अलावा उन कंपैरिजन में ये सब छोटा लगता है. तो उस आई थिंक वो प्रोसेस दोनों में कर चीजें गया. कॉम्प्लीमेंट करती हैं. योर बिजनेस इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर ट्रिप, एंड योर ट्रिप इज आल्सो करेक्ट कॉम्प्लीमेंटिंग सर. योर बिजनेस. करेक्ट सर. So really helped. Okay, last question about your experience with Nulearn as an employee and as a customer. So what you like to say about your experience? एज अ न्यूलन सर, मतलब मैं मतलब अपने पेरेंट्स से जब भी बात करता हूँ, आई टेल दैट न्यूलन केम एज अ लाइफ चेंजिंग थिंग टू माई लाइफ. मैं आया मतलब मैं जब भी मेरे से न्यूलन्स के फीडबैक लिए गए हैं, कोई भी पूछता है आपको क्या पसंद है न्यूलन में, मैं उसमें लिखता हूँ ओनली सुमित सर. सो मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, दैट यू ऑल्सो नो राइट. सो मतलब आई मेट यू, आई सॉ यू ग्रोइंग, मतलब कंपनी को चलाना कैसे चलाते हैं. आई सॉ यू हायरिंग पीपल ग्राउंड लेवल पे. जब मैं पहले काम करता था, शायद वो एक बड़ी कंपनी थी, मेरे को ऐसा लगता था कि बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ बड़ा चाहिए होता है. बट देन आई सॉ यू, आई अंडरस्टूड के मतलब ये कर सकते हैं. if you will start from ground level also. So I got that confidence from you. जब हमारा फोर्थ एनुअल न्यूलन का कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी 2021 में, आई रिमेम्बर. तो आई वॉज वेरी सैड दैट टाइम. क्या मतलब सैड तो मैं इसलिए नहीं था कि मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा एक सपना है कि मेरे को बिजनेस करना है. देन आई हर्ड योर स्टोरी, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया. प्लस देन यू हैव मेंटोर्ड मी अ लॉट, है ना. मतलब देयर आर एम्प्लॉयर्स इन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर पता चलता है कि अगर ये इंसान बिजनेस करना चाहता है आगे जाके, तो डिडंट सपोर्ट, बट आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. एंड आई टेल दिस टू एवरीवन, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू बिकम. कि अगर कल को कोई मेरे पास आता है, तो मैं भी उसको उसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ जैसे आपने मेरे को हेल्प किया. तो न्यूलन एज एन एम्प्लॉय हैव बीन अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. अगर न्यूलन नहीं आता, तो शायद मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता. तो दैट्स व्हाट. सो न्यूलन हैज बीन, इट इज वेरी स्पेशल टू मी. इसीलिए आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी मेरे साथ न्यूलन में थे. तो मतलब एक स्पेशल फीलिंग है मेरे को यहाँ से ना. मतलब आई टॉक टू एवरीवन ऑलमोस्ट, जो भी मेरे दोस्त रहे हैं. कमिंग टू एज अ कस्टमर अगेन, लाइक वेरी स्मूथ टेक्नोलॉजी. मतलब जब मैं दूसरी कंपनी में होता था, आई हैव सीन पीपल क्राइंग. मतलब जो मेरे कस्टमर्स होते थे कि यार जतन टेक्नोलॉजी में मजा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है. तो आई यूज टू थिंक कि ऐसा ही होता होगा शायद. बट जब वेबएक्स पे काम किया, मतलब इट वाज वेरी स्मूथ. मतलब मेरे को
इट वाज, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना स्मूथ हो सकता है। बहुत स्मूथ था, बहुत प्रोफेशनल था, सारे नोट्स आ जाते थे, बड़ा इजी रहता था पढ़ने में। इट वाज गुड, वेरी गुड। Right, right. With this, we end our discussion, Jatin. One message for a working professional, somebody who has been in the industry, a message from an entrepreneur to an, another entrepreneur or maybe another working professional. So message for the employees who are working right now, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि लोग काम करें, that's why if you have been to my LinkedIn profile, I've written I want to create more entrepreneurs in this country. So entrepreneurship मेरे लिए एक सिर्फ माइंडसेट है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को बिजनेस खोल के बैठ जाना है। हर कोई बिजनेस करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे कमाएंगे? Right, तो ये है कि अगर आप एक entrepreneurial माइंडसेट के साथ काम करते हो कि दिस इज माई ओन वर्क, मैं यहाँ पर सैलरी ले रहा हूँ। अगर हर 1 तारीख को कंपनी आपसे ऑनेस्ट है कि आपको 1 तारीख को, 10 तारीख को जब भी सैलरी देती है उस पर सैलरी आ जाए, दैट मीन्स दैट्स इनफ। यू आर right, सपोज टू गिव योर 10x एटलीस्ट, मतलब आपको करना ही है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वर्क विद एन ऑन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कि मैं ऑन्टरप्रेन्योर होता तो ऐसे काम करता है, मेरा अपना काम है। सो डोंट थिंक कि मतलब कंपनी को तो बहुत पैसा मिल रहा है ऑलरेडी, मेरे को तो बहुत सारे ऑफ चाहिए। थिंक लाइक right, कि मेरा अपना घर है। अगर मेरा अपना, इवन मैं तो बोलता हूँ लाइक इट शुड बी इम्प्लीकेटेड टू योर कंपनीज वॉशरूम ऑल्सो। मैं टेल दिस टू माई टीम, आप यहाँ पर 12 घंटे रहते हो, दिस इज योर सेकंड होम, मतलब आना जाना सब मिला के 12 घंटे लग जाते हैं, तो अगर यहाँ का वॉशरूम भी आपको गंदा मिलता है ना, तो टेक केयर ऑफ दैट। तब आपको ये अपना वन फीलिंग आएगा कि अगर ये मेरा घर होता तो कैसा होता, तो फील लाइक योर होम, अपने घर के लिए कैसे मेहनत करते। सो दैट्स व्हाट द मैसेज इज। Beautiful thought. Thank you so much, Jatin, for taking थैंक our यू time सर। today. Thanks again on behalf of the Newland team. And we look forward to meet you in person. Thank you थैंक so यू सो much. मच सर। थैंक यू।